Good morning, everybody. I am your English teacher from Mount Litra Z School, Rampura 4. बच्चे, as you can see here on my screen, there you can see an animal, and we all know that this is a big animal, and name of this animal is elephant. This is an elephant. So what is the name of this animal? Elephant. And next we have on our screen the pic of a lion. This animal is called lion. So what is the name of this animal? Lion. We call it lion. In common, we call this animal lion. And in the third pic, I have a flower. Here, this one is a beautiful flower, and it is red and green in color and yellow also, and this flower is very beautiful. Again, flower is the name of this thing. It is a flower. We all call it a flower. Whenever you go to a garden, whenever you go to a park and you see these kind of things, and we always we say that wow, what a beautiful flower. So these kind of things जो हमें बेटे दिखने में ऐसी लगती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर. क्या बोलते हैं? फ्लावर. And next we have, in this picture I have two flowers, one flower and two flowers. ठीक है? Again it is a flower. The name of this thing is flower. बेटे कैसा भी है फ्लावर, कोई रोज होता है, कोई सनफ्लावर होता है, कोई लोटस होता है. ठीक है? So we have different colors of flowers, different in size. ठीक है, डिफरेंट नेम्स, बट ऑल टुगेदर वी कॉल देम फ्लावर. हम सबको क्या बोलते हैं बेटे? फ्लावर. एंड उनके भी अलग अलग नेम्स हैं. लोटस है, देन सनफ्लावर है, वी हैव रोजेज ऑल्सो, लिली ऑल्सो. सो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर. नाउ एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट, देन द लायन, उसके बाद वी हैव दिस रेड फ्लावर एंड देन दिस येलो फ्लावर. ठीक है? अब बेटे ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर नेमिंग वर्ड्स. ऑल दीज आर नेमिंग वर्ड्स. वाई वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स? बिकॉज ये किसी न किसी के नेम है. एलिफेंट बेटे एक नेम है, नेम ऑफ एन एनिमल. हम उसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं. देन लायन, वो भी एक एनिमल है. ठीक है? उसके बाद वी हैव फ्लावर. फ्लावर इज अ थिंग. Lion is an animal, flower is a thing. ठीक है? Now let us take few more examples. Your mother, your father, your teacher, they all are persons. ठीक है? तो वो भी किसी का नेम है. हमारी मम्मा को हम क्या बुलाते हैं? मदर बुलाते हैं. So mother is a person. ठीक है? And next we have place. Rampura, Bathinda. You live in Rampura and I live in Bathinda. So Rampura, Bathinda, even Delhi, Chandigarh, Amritsar, all these are places. ठीक है? So this topic of naming words we have already done in detail, but I am just going to revise. I am just revising the things. That naming words are names. किसके names होते हैं बेटे? Naming words are names. Names होते हैं, लेकिन किसके names होते हैं? Name of a place, name of a person, name of a thing, and name of an animal. Even a bird also. Bird is also a name. If you include a bird, that is also a naming bird. किसी bird का भी name बेटे naming bird है. So all these are naming words. Now the question is, why I am revising this concept of naming words today? You will just come to know in a very short span of time. बेटा आपको अभी पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद कि हम लोग ये naming words क्यों कर रहे हैं. Now first of all, let us talk about few of the details of these animals and flowers. Okay, we have an elephant. Elephant क्या है बेटे? एक naming word है. Elephant is a naming word. But tell me, what is the color of this elephant? इस elephant का color क्या है बेटे? Grey. The elephant is grey in color. So I have written grey over here. ठीक है? Elephant is grey in color. ठीक है? We have got a grey elephant.
Now we have a lion. This is a lion, we all know, and lion is a naming word. Lion is a naming word. किसी animal का name है तो naming word है. Now, what is the color of this lion? Yellow. This lion is yellow. So I have written yellow here. ठीक है. So बेटा, what is the color of the lion? Yellow. ठीक है. And next we have a flower. This is the flower. And what is the color of the flower? Red. Green भी है. It has green leaves. Red and yellow, and it has green leaves. And next we have these two flowers. These two flowers, they are same in color, that is yellow. इनका बेटे yellow color है. ठीक है. What is the color of the flower? Yellow. But if you see, this flower is big. This flower is big, and this flower is small. तो बेटे ये जो फ्लावर है ये बिग है साइज में, एंड दिस फ्लावर इज स्मॉल इन साइज. ठीक है. सो व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स? आई एम टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज हियर वी आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ दीज एनिमल्स एंड फ्लावर. ठीक है बेटे, हम इनकी क्वालिटीज बता रहे हैं. ये एनिमल्स एंड फ्लावर्स, एलिफेंट, लायन, देन दीज फ्लावर्स, all these are naming words. ये naming words हैं. And ये this flower is big, this one is small flower, lion is yellow in color, elephant is grey in color. ये big है जो small हो गया. ठीक है. Then yellow हो गया, yellow lion, then grey elephant. ये grey है, yellow है, big है, small है. ये सब क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जो इन एनिमल्स के बारे में, इन थिंग्स के बारे में, इन फ्लावर्स के बारे में टेल अस मोर. इन वर्ड्स से हमें पता चलता है बेटे कि ये कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है. ठीक है. सो वी कॉल देम इन इंग्लिश डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इन इंग्लिश वी कॉल देम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? Describing words means which describe a place, person, thing, animal, or you can say birds. तो बेटे describing words क्या होते हैं? जो describe करते हैं. किसको describe करते हैं? A place, किसी place को, a person, किसी person को, a thing, an animal, or a bird. So these are describing words. इनको हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, इनको हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? इफ समबडी आस्क यू दैट व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, you have to give the answer. And what you are going to say is that describing words which describe naming words. Which describe naming words. अगर आपको naming words बोलना मुश्किल लगेगा, then you can also say describing words describe a place, a person, a thing, or an animal. ठीक है. So describing words, they describe naming words. Now, what is the meaning of describe? Describe means to tell more about. बेटे किसी के बारे में और बताना. जैसे एलिफेंट है, हम सबको पता है that is an elephant. But हमें फिर पता चला, पहले हमें ये था that is an elephant. After that we came to know that elephant is grey. So वो क्या है? Describing word है. Grey is a describing word. Why? Because grey word ने क्या कर दिया? Elephant को describe कर दिया. To tell more about. उसने elephant के बारे में हमें और भी ज़्यादा बता दिया. So grey is a describing word and elephant is a naming word. तो ग्रे ने क्या कर दिया? नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया. सो द वर्ड ग्रे इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. एंड नेक्स्ट वी हैव येलो, लायन. लायन इज अगेन अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एन एनिमल. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द लायन? येलो. सो बेटे येलो जो वर्ड है, दिस वर्ड इज टेलिंग अस मोर अबाउट द लायन. सो येलो इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. Yellow is a describing word. And then we had this flower.
ठीक है, वी हैड टू फ्लावर्स, दिस वन इज बिग फ्लावर एंड दिस वन इज स्मॉल फ्लावर. अगेन दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर क्या है, नेम है इसका. सो फ्लावर इज अ नेमिंग वर्ड. बट इस फ्लावर के व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस फ्लावर, इसकी बेटे क्वालिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है, दैट दिस फ्लावर इज येलो इन कलर एंड इट इज बिग. So big is a describing word because the word big is telling us more about the flower. So big is a describing word. And next we have this flower and it is small in size. So again the flower word is a naming word and small is a describing word. ठीक है. So अब हम क्या बोल सकते हैं, if somebody asks you that what are describing words, so you can say in English, you can say describing words describe naming words, describing words describe naming words. आप इस तरह से भी बोल सकते हैं that which tell us more about naming words, which tell us more about naming words, जो हमें बेटे नेमिंग वर्ड्स के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में या एनिमल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताते हैं. अब वो जो बता रहे हैं दैट कैन बी गुड और दैट कैन बी बैड. वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर इज अ बॉय इन योर क्लास, देर इज अ बॉय इन योर क्लास. ठीक है. एंड द नेम ऑफ द बॉय इज, चलो सपोज देर इज अ बॉय इन योर क्लास and the name of the boy is Vijay. The name of the boy is Vijay. ठीक है. So Vijay is a name and Vijay is a naming word. Name है तो बेटे वो क्या है, naming word है. ठीक है. Okay, Vijay is very intelligent. Vijay is very intelligent. So आप क्या बोलोगे, intelligent Vijay या intelligent boy. Vijay is a boy, so you can say boy also. So you can say intelligent Vijay or intelligent boy. So now boy is a naming word and boy कैसा है बेटा, boy कैसा है, वो intelligent है, तो उसकी quality क्या है, intelligent. So intelligent is a describing word. Intelligent is a describing word. ठीक है. Okay. Now there is one more boy in your class. वो बिल्कुल नहीं पढ़ता. ठीक है. शरारतें करता है सारा दिन. ठीक है, बहुत शरारती है, पढ़ता बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो ए बॉय. अगेन बॉय इज अ नेमिंग वर्ड, लेकिन वो बॉय कैसा है, नॉटी है, नॉटी बॉय. तो यू कैन से नॉटी बॉय. इट मीन्स बॉय इज अ नेमिंग वर्ड एंड वो बॉय कैसा है बेटे, वो बॉय कैसा है, नॉटी है. सो इट मीन्स नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. उस बॉय की क्वालिटी क्या है कि वो naughty है. So naughty is a describing word. Now after having introduction of the describing word, after knowing about the concept of the describing words, let us start with chapter number 9 of English grammar book, and the name of the chapter is describing words. Name of the chapter is describing words. Let us start solving this exercise and then you will come to know more about the concept of describing words. Okay. First we have, look at this picture. Here is a boy. तो बेटे a boy, boy तो है, लेकिन वो boy कैसा है? The boy is tall. Boy is tall. So boy is a naming word and tall is a describing word. Boy कैसा है, tall है. तो आपको how will you come to know? Basically जो describing words होते हैं वो बिल्कुल naming word के साथ होते हैं. So सबसे पहले you have to find out the naming word. In a sentence you have to find out the naming word. फिर आपने ये देखना है कि उस naming word के बारे में what quality is given. उस naming word के बारे में और क्या बताया गया है sentence में. जो भी बताया गया है, whatever quality, that can be good also or that can be bad also, but whatever quality of the naming word is given in the sentence, that quality will be your describing word. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए, look at this picture. There is a dog. Dog
किसी का नेम है, एक एनिमल है, सो एनिमल इज अ डॉग, बट व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉग? ब्राउन. सो ब्राउन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ब्राउन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है. नाउ वी कैन हैव, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज योर मदर. योर मदर इज अ नेमिंग वर्ड. बेटे मदर है जो, वो नेमिंग वर्ड है ना. इफ आई आस्क यू दैट डिस्क्राइब योर मदर, it means, if I am asking that describe your mother, it means you have to tell the quality of your mother. आपको बताना है कि आपकी मम्मा कैसी हैं. ठीक है. Suppose your mother is very beautiful, तो you can say beautiful mother. तो बेटे beautiful क्या है? Describing word है. तो यहाँ पे in these questions you have to circle the describing word. अब यहाँ पे देखिए बेटे, डांस डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है. बॉल भी, बॉल तो एक नेमिंग वर्ड है. बॉल किसी के बारे में कुछ बताती तो नहीं है ना. डांस भी किसी के बारे में कुछ बताता नहीं है. सो ब्यूटीफुल बताता है. ब्यूटीफुल मदर, ब्यूटीफुल फ्लावर. सो ब्यूटीफुल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्लेवर, आंट, ब्रेड. आंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. आंटी को हम लोग आंट भी बोल देते हैं. वो एक नेमिंग वर्ड है. इट इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है. ब्रेड इज अ नेमिंग वर्ड. ब्रेड भी किसी का नेम है. तो बेटे यहाँ पे विच इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड? क्लेवर. क्लेवर मतलब चालाक. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चालाक लोमड़ी, है ना. इंग्लिश में वी कैन से अ क्लेवर फॉक्स. सो फॉक्स कैसी है बेटा? क्लेवर है. फॉक्स इज एन एनिमल, लेकिन फॉक्स कैसी है? क्लेवर. सो क्लेवर इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो इन दिस वे, here from these questions you have to find out the describing word. You have to find out the describing word. ठीक है. So here in every sentence, यहाँ पे question number B में, in every sentence you have to fill in these blanks using the describing words. ठीक है. तो बेटे आपको यहाँ पे देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं. जैसे यहाँ पे नंबर 3 में we have school, sweet, chair. School is the name of a place, chair is name of a thing. ये names हैं. So sweet. Sweet is a describing word. ठीक है. This chocolate is very sweet. Fine. This candy is very sweet. So sweet is a describing word. Chocolate है. Chocolate तो name है, but chocolate कैसा है? Sweet है. Then we have mouse. Number 4 में mouse is a naming word. Rain is a verb, we can say. ठीक है. रेन भी किसी का कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है. पिंक इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. यू हैव अ फ्रॉक. फ्रॉक कैसी है? पिंक है. देन वी हैव रन, कार एंड इजी. इजी इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, आई गिव यू अ टेस्ट एंड उसमें देयर आर 5 क्वेश्चंस, यू कैन से, आपको लगता है कि वो तो बहुत ज़्यादा आसान है, इजी है, देन यू कैन से मैम दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो बेटे क्वेश्चन कैसा है? इजी है. ठीक है. सो इजी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इजी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. नाउ नेक्स्ट में वी हैव सम ब्लैंक्स आर गिवन टू यू एंड इन दीज ब्लैंक्स यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स फाइंडिंग आउट द वर्ड फ्रॉम हियर. जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट एंड उनके आंसर्स आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में भरने हैं. ठीक है. जैसे नंबर 2 देखिए, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ओनली. दिस सम इज वेरी, सम कैसा होता है बेटे? इजी होता है. तो यहाँ पे नंबर 2 में क्या आ जाएगा? इजी. सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस होल पेज इन योर इंग्लिश ग्रामर book. And the name and topic is describing words. And next we have here in these sentences also, C में देखिए, underline the describing words in the following sentences. Some sentences are given to you and you have to underline the describing words. Let me give you one example. चलिए हम लोग बेटे एक एग्जाम्पल करते हैं. नंबर 4, look at number 4 example. She wore a pretty frock. First of all, you have to find out the naming word. First step is to find out the naming word. Which is the naming word? Frock.
बेटे फ्रॉक किसी का नेम है, हमारी जो गर्ल जो फ्रॉक पहनती है बेटा उसका नेम क्या है, फ्रॉक है, हम उसको फ्रॉक बोलते हैं। सो फ्रॉक इज अ नेमिंग वर्ड। बट हमें क्या ढूंढना है, हमें तो डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढना है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द नेमिंग वर्ड। वो हमें मिल गया है, फ्रॉक। फ्रॉक इज अ नेमिंग वर्ड। फ्रॉक कैसी है, प्रिटी। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल। सो प्रिटी इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। So in this way you have to do all these 6 questions, ठीक है। And next we have, यहाँ पे देखिए बेटे, blanks are given to you and you have to find out the answers from the box. A hell box is given to you and you have to find the answers from the box. Okay, let me give you one example. Burger. बेटे बर्गर के लिए क्या आ सकता है, बर्गर कैसा हो सकता है, 3 बर्गर, नो। हैप्पी बर्गर, नो। सैड बर्गर, नो। टेस्टी। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में यू विल राइट टेस्टी। यहाँ पे इन दिस ब्लैंक यू विल राइट टेस्टी बर्गर, ठीक है। देन वी हैव एप्पल्स। एप्पल्स कैसे हैं बेटे, रेड। यहाँ पे देखिए रेड। सो हेयर यू विल राइट एप्पल्स की ब्लैंक में यू विल राइट रेड एप्पल्स। सो यहाँ पे यू विल राइट रेड एप्पल्स। सो इन दिस वे you have to fill all these blanks. And next we have again these blanks to be done by you. यहाँ पे भी बच्चे हेल्प बॉक्स इज गिवन टू यू, उस हेल्प बॉक्स में से देख के आपको ये सारी ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। एंड हियर अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू, यू हैव टू सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ। आपको इस पैराग्राफ में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सर्कल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस दिस पैराग्राफ। छोटा सा, माही एंड मिहिर आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। माही इज अ स्मॉल गर्ल। अब बेटे गर्ल है, गर्ल कैसी है, स्मॉल। तो स्मॉल क्या है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आप यहाँ पे यू विल सर्कल स्मॉल। शी हैज लॉन्ग हेयर एंड बिग आईज। हेयर इज अ नेमिंग वर्ड। हेयर, हमारे बालों को क्या हम क्या बोलते हैं, हेयर। सो हेयर कैसे है, लॉन्ग। सो यू विल सर्कल लॉन्ग। लॉन्ग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव एंड बिग आईज। तो बेटे आईज कैसी हैं, बिग आईज हैं। आईज कैसी हैं, बिग आईज हैं। सो इन दिस वे द रेस्ट ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स you will be finding from this paragraph, a small paragraph. It's very easy. And then you have to do these blanks. Big, old, hot, soft and long. These are options given to you in the box, help box, and you have to find the answers. Now first one is the dash lady is walking slowly. अब बेटा आप ये बताओ, अब बिग लेडी स्लो चलती है, नो। ओल्ड लेडी, यस। ओल्ड मीन्स जो बेटे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, जैसे योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंड फादर, है ना, या हमारे नेबर्स में भी आप लोगों ने देखे होंगे। ऑल दीज पर्सन्स दे आर ओल्ड पर्सन्स। वो बेटे अब जिनकी एज हो जाती है ना, हम उनको क्या बोलते हैं, ओल्ड, ठीक है। और हिंदी में हम बोल देते हैं कि वो बूढ़े हो गए अभी। सो ओल्ड, ओल्ड मीन्स अ पर्सन जिसकी एज है वो बहुत ज्यादा है। सो हु इज वॉकिंग स्लोली, दैट लेडी इज वॉकिंग स्लोली। सो लेडी इज अ नेमिंग वर्ड, लेकिन वो लेडी कैसी होगी बेटे, ओल्ड होगी। सो फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, आंसर विल बी OLD, ओल्ड, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू ऑल दीज ब्लैंक्स एंड so you have to do all these exercises on every page of chapter number 9, that is describing words. I hope this all concept is clear to everybody. Please try to solve this exercise and try to do all the pages, and this is the homework for today. If still you face any problem, we will have one more session on the same topic, that is describing words. So this was your English teacher from Mount Litra G School, Rampura Fool. Thank you everybody and have a nice day.